हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे। इकोनॉमिक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं कमला नेहरू विधि संस्थान की तरफ से इकोनॉमिक्स की पाठशाला में आज आपके साथ लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। उपयोगिता विश्लेषण के कुछ नियम की बात कर रहा हूँ। पिछली क्लासेस में हमने आपको उपयोगिता के मेजरमेंट के बारे में बताया था। इसके अलावा उपयोगिता से संदर्भित और वो सारे विषय की चर्चा मैंने आपके साथ की थी, जिसमें कुल उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है, टीयू क्या है, एयू क्या है, एमयू क्या है। इससे संबंधित मैंने आपके साथ विषयों की चर्चा की थी। आज की क्लासेस में छात्रों, मूलतः जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे या जिस विषय पर आपके साथ इस क्लासेस में बात होनी है, वह उपयोगिता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ विषय है। उपयोगिता से सिद्धांत से जुड़े हुए विषय का मूलतः आशय यह है कि यहाँ हम प्रोफेसर गोशन के द्वारा जो उपयोगिता को मापने के लिए सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों की मैं बात करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रोफेसर गोशन ने उपयोगिता से संदर्भित जो विषय दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को दो तरीके से मापा जा सकता है, या उपयोगिता को से संबंधित दो दो विश्लेषण हैं। जिसमें पहला विश्लेषण था कि उपयोगिता घटती हुई होती है, या प्रत्येक एक इकाई से जब दूसरी इकाई को हम उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती हुई होती है। और दूसरा सिद्धांत इसने दिया था कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं को उपभोग करता है, तो उसके उपभोग के लिए वह एक ऐसे विकल्प को प्राप्त करने की बात करता है जहां पर उसे समान संतुष्टि मिले, या दो वस्तुओं के बीच में वो उन ऑप्शंस को चयन करने की बात करता है जहां उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी दोनों को बाद में सिद्धांत के रूप में परिणत कर दिया गया। आइए इन्हीं दोनों विषयों के बारे में चर्चा आपके साथ करते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, छात्रों, बेसिकली in current lecture, in today's lectures, we are going to discuss about the law of utilities analysis. In earlier lecture, we have to define what the utility concept and what the measurement process of the utility and what is the analysis of the utility. But now, in this lecture, we are basically focused on the theory of Professor Goshen. Professor Goshen was the first scholar who have to define the uh, law of utility in a systematic manner. Before the Professor Goshen, all of scholars may have to recognize the concept of utility by the name of Professor Marshall. But after introductions of after the theories of the Professor Goshen, it is explained, it is clear that the utility is systematically being introduced by the Professor Goshen for first time. So this is in the name of Professor Goshen. These laws are called as the law of Goshen's. Professor Goshen have to derive two theory. First, the law of diminishing marginal utility. As per the Professor Goshen, each and every additional unit of the commodities, we are getting the utility in diminishing order. So that is what the utility is. First, firstly, we can say the first law for the utility observation is law of diminishing marginal utility. It is the nature of the utility. So it becomes the first law of Professor Goshen, because this is first time. This is the concept first time introduced by the Professor Goshen. Firstly, so this is in the name of Professor Goshen. It is also be called as the first law of Goshen. Further, for the second theory, it's law of equimarginal utility. In this theory, Professor Goshen have to introduce those satisfactions point or the combinations where the consumer are consuming more than one commodity, and how can they prefer, how can they make the combination of their various commodities as per their utility analysis. So this is the second law, that is called the law of equimarginal utility. Basically, in lecture we are just introducing the going to introduce the uh, these two theory, and separately we have to discuss it in detail on another lecture. So comes to the topic, and we going to discuss the law of the laws of utility analysis. Students, utility has two main laws. As earlier we have to say, उपयोगिता के दो मुख्य नियम हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। दो हैं, तो इसका मतलब पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है,
जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम भी कहते हैं, जिसे सीमांत उपयोगिता घटता हुआ नियम भी कहते हैं, या उपयोगिता का ह्रासमान प्रतिफल भी कहते हैं। उपयोगिता का ह्रासमान सिद्धांत तो कह ही रहे हैं। तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। और इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का है। इसे सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, सम उपयोगिता का सिद्धांत या समान उपयोगिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये दो लॉस हैं प्रोफेसर, और दोनों प्रोफेसर गोशन के द्वारा दिए गए, इसलिए इसको पहले वाले को गोशंस फर्स्ट लॉ और दूसरे वाले को गोशंस सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं। आइए पहली लॉ की बात करते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, बट बाकी डिटेल में क्लासेस में, अगली क्लासेस में जब हम सीमांत उपयोगिता की चर्चा करेंगे तो वहां बातें करेंगे। Law of diminishing marginal utility is the the foundations stone of utility analysis, and we can say that all of the experience the law is in our daily life, it have to derived from, it has to explain from the understanding process of law of diminishing marginal utility. If we buy a pen and any given times, when as the number with we to increase the purchase of that pen, our marginal utility from each and every successive units are be in decreasing order, because it is successive from the law of Professor Robbins. Wants are unlimited and resources are limited. Each and every wants have alternative choices. So this concept is be the part of this analysis. Professor Gosen says that while the increasing of each and every unit, each and every additional unit, the utility is in the different in the diminishing order, and that is called the law of diminishing marginal utility. This is the cause of this diminishing order. It is called the law of diminishing marginal utility. For the Hindi medium students, उपयोगिता का जो नेचर है वो ह्रासमान है। उपयोगिता को जब हम चर्चा करते हैं तो उपयोगिता का मतलब यह है कि वाइल द कंजम्पशन ऑफ एक अतिरिक्त इकाई को जब हम उपभोग करते हैं तो प्रति अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ साथ हमें वास्तव में प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती हुई ऑर्डर में होती है। एडिशनल यूनिटी, जब भी हम एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करते हैं तो उपभोक्ता को उपभोग करने के दौरान एक आभास होता है कि हर अगली इकाई से उसकी उपयोगिता की तीव्रता में कुछ न कुछ कमी आई है, और यही संतुष्टि का बोध होता है। और इसी से संतुष्टि के बोध को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर गोसेन ने इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल कह लीजिए, आपको एक बार में एक से अधिक पेन खरीदना है, एक बार में एक से अधिक कॉपी खरीदनी है, कोई भी चीजें एक से अधिक मात्रा में खरीदनी है, तो पहली इकाई के लिए जो आपको उपयोगिता मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, दूसरी इकाई के लिए जो उपयोगिता मिलेगी उससे कम मिलेगी। इसी इकाई की उपयोगिता को जो घटती हुई ऑर्डर है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सिद्धांत कहा जाता है। इसकी और डिटेल चर्चा हम जब इंडिविजुअल क्लासेस में चर्चा करेंगे तो वहां बात करेंगे। दूसरा सिद्धांत जो इनका है वो क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर दो वस्तुओं के उपभोग के दौरान उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्त होती है, उसे सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ गोशन। As earlier we have to say, the law of equimarginal utility is the second important law of the utility, is given by Professor Goshen. And as per the name of the Professor Goshen, it is also be called as the Goshen's second law. This law point out to how a consumer can get maximum satisfaction out of his given expenditures of the different goods. This law concerning the expenditure of the consumers was propounded in 19th century by the French engineer Professor Goshen. So in the name of the Professor Goshen, it should also be called the Goshen's law or Goshen's second law. Dr. Marshall has called it law of equimarginality. It started that in order to get the maximum satisfactions, consumers should expand his limited income on the different commodities in such a way that the last rupees spent on each commodities held him equal marginal utility. Left, which refers to it as the general principles of the maximizations of the consumer satisfaction. In simple word, it is called as law of maximum satisfactions or law of the preferences, maximum preferences uh, of consumer satisfaction. Though for the Hindi medium student, the same concept is in the order.
समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत सामान्यतः छात्रों उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कह रखा था, और ये प्रोफेसर गोशन के द्वारा दिया गया है, इसी नाते इसको प्रोफेसर गोशन का दूसरा नियम भी कहते हैं। यह नियम यह बताता है कि एक उपभोक्ता जब विभिन्न वस्तुओं का उपभोग अपने दिए गए व्यय क्षमता या आय, जो भी आप कह सकते हैं, से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करता है, तो उपभोक्ता के व्यय से संबंधित यह नियम इस बात का प्रतिपादन करता है कि उपभोक्ता को हर अतिरिक्त इकाई के लिए प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती हुई दर से होगी। इस बात को फ्रांसिस इंजीनियर प्रोफेसर गोशन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इस नाते इसको गोशंस के दूत के नाम, लॉ के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत भी नाम दिया था। वो ये उनके अनुसार ये सिद्धांत ये बताता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपनी सीमित आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि जिससे प्रत्येक वस्तु पर खर्च किया गया धनराशि, प्रत्येक वस्तु पर खर्च किया गया मुद्रा उसे दूसरे वस्तु की तुलना में अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रही है। तो समसीमांत उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो यह सिद्धांत यह बताता है कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपनी सीमित आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान रूप में उसको संतुष्टि प्रदान करती हो। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट दिया था उसे अधिकतम संतुष्टि के सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेन किया था। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी तो कहते ही हैं, सीमा सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत तो कहते ही हैं, इसे हम अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कह सकते हैं, अधिकतम संतुष्टि के नियम के रूप में भी जानने की बात कह सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा सिद्धांत। अगली क्लासेज में छात्रों इन्हीं दोनों में से पहला पॉइंट में टच करूंगा आपके साथ, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में विशेष चर्चा होगी। आज की क्लासेस में मैंने केवल उन दो लॉ के बारे में आपके साथ एक परिचय कराया है, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया है। तो आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे लग रहे होंगे और आपको इस विषय से जुड़ा हुआ जो आपका एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट भी हो रहा होगा। तो आज की क्लासेस के बारे में जैसा भी आपका अनुभव हो आप जरूर सेट करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको लाभ दे रहा होगा। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उन तक इस बात के बारे में पहले ही नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आप केवल सब्सक्राइब ही ना करें, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं इसे नोटिफाई भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। आई होप यू आर एंजॉइंग फ्रॉम द कंटेंट ऑफ दिस क्लास एंड मैं इस क्लासेस को पढ़ा करके आपकी आवश्यकता के अनुरूप, आपकी डिमांड के अनुरूप इस क्लास को पहुंचा पा रहा हूँ। धन्यवाद।